Welcome back students to your another lecture of mercantile law, and in today's video we are going to talk about discharge of contract. Now previously up till now we had been studying chapters regarding contracts, their performance, what are the essential elements of a contract, and basically everything had to do with the creation or establishment of a contract, that how a contract is supposed to be created, how it is supposed to be carried forward. But in this chapter we are going to discuss that what happens when a contract is terminated, or what rules and regulations or methods both the parties can take into account when they want to end the contract, because that is what discharge basically means. Discharge of contract का मतलब होता है when both the parties who have signed the contract mutually agree to end all their obligations with regards to that contract. अगर किसी एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को दो पार्टीज ख़त्म करने के लिए तैयार होते हैं तो उसमें वो लोग जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन कर चुके हैं, अपनी तरफ से वो जो भी उसमें कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, वो सब ऑपरेशनली ख़त्म हो जाता है. दैट इज़ द कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू एग्जिस्ट, इट बिकम्स नल एंड वॉइड. दिस इज़ बेसिकली व्हाट डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स. इफ़ यू लुक इनटू योर पीडीएफ्स व्हिच आई हैड सेंट यू, उसमें सेकेंड स्लाइड में आपका लिखा है a contract is said to be discharged when it ceases to operate, that is when its rights and obligations created come to an end. यानी कि एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को हम ख़त्म तब मानते हैं जब उसमें जितनी भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस मेंशन्ड हैं रिगार्डिंग आइदर पार्टीज, दे कम टू एन एंड एज वेल. दोनों पार्टीज़ के ऊपर अब कोई ऑब्लिगेशन नहीं रह जाता है, कोई लाइबिलिटी नहीं बनती है, और वो इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं. नाउ योर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैज़ गिवन यू डिफरेंट मेथड्स बाय विच यू कैन टर्मिनेट और डिस्चार्ज अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट. देयर आर इन टोटल 6 मेथड्स जो कि हैं आपके. फर्स्ट वन इज़ बाय परफॉर्मेंस, second is by agreement or consent, third is by impossibility of performance, fourth by lapse of time, fifth by operation of law, and sixth by breach of contract. Now let us see what is the first method of discharging a contract. It says discharge by performance. Now performance of a contract we have studied as a separate chapter, जिसमें basically क्या होता है कि जब एक contract को complete कर दिया जाता है, that is when all the obligations, terms, conditions and liabilities of either parties upon each other are fulfilled by them, then the contract automatically comes to an end and it is said to be performed. Now this is the simplest and the most used way of discharging a contract. यानी कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस, जो भी ऑब्लिगेशंस उसमें मेंशन्ड है कॉन्ट्रैक्ट की, आप उन्हें अपनी तरफ से कंप्लीट करिए और आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. Suppose A and B enter into a contract where A promises to pay B 500 rupees for 2 kgs of rice which B will deliver to A. Now B delivers 2 kg of rice to A, तो B की ऑब्लिगेशन जो थी वो ख़त्म. A pays 500 rupees for those 2 kg of rice, तो अब A की ऑब्लिगेशन भी ख़त्म. So over here both the parties performed their contract and hence the contract is now terminated. अब जब कॉन्ट्रैक्ट में जो भी कंडीशंस मेंशन्ड हैं, जब वो कंडीशंस पूरी कर दी, देन ऑटोमेटिकली उस कॉन्ट्रैक्ट के एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं बनता, वो अपने आप ही टर्मिनेट हो जाएगा. अब आपका डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस भी दो तरीके का होता है. फर्स्ट इज योर एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड देन इज योर अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस. अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस इज ऑल्सो नोन एज टेंडर. मेनी टाइम्स इट इज कॉल्ड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस और समटाइम्स इट इज जस्ट नोन एज टेंडर. Now what happens when a contract is discharged by actual performance? It says when both the parties perform their promises, the contract is discharged. Very simple, यानी कि जब दोनों parties अपने अपने obligations को, अपने अपनी तरफ की liabilities को पूरा कर देते हैं, तब हम ये कहते हैं कि हमारा ये particular contract discharge हो गया है. That is both the parties have fulfilled it. ऐसा नहीं कि एक पार्टी ने अपना काम किया, एक पार्टी ने अभी नहीं किया, तो भी हम कहेंगे कि हाँ ये contract हमारा terminated है. No, the contract is still in progress in that case. But when both the parties complete their end of obligation, the contract is said to be terminated. Next we are going to talk about discharge of contract में when there is an attempted performance or tender of performance. Now tender of performance basically means that one person wants to perform the contract, wants to fulfill his end of obligations, but for some reason the other party or the other person is not letting him do that. One example you can think of is, suppose a person boards a bus and he has to purchase a ticket from the bus conductor which is of 1 rupees.
Now the person who has boarded the bus offers 100 rupees to the conductor. The conductor refuses to accept it. For let's say he did not have the change for the 100 rupees क्योंकि टिकट तो 1 ही रुपए का था. यहाँ पर the promisor has tried to fulfill his end of the contract कि हाँ मैं पे करने के लिए तैयार हूँ. The promisor is not saying that I will not pay for it. He is ready to pay. But is the promisee willing to take that amount from him? No. So over here this is called this is called tender of performance or attempted performance. यानी कि यहाँ पर प्रॉमिसर अपनी तरफ से पूरा करने की कोशिश करता है लेकिन प्रॉमिसी किसी वजह से उसे कंप्लीट नहीं करने देता है अपनी प्रॉमिस को. अब इसमें डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे आया? बिकॉज आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस बिट दैट डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन टेक प्लेस व्हेन बोथ द पार्टीज फुलफिल देयर ऑब्लिगेशंस. बट जब अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस होती है दैट इज़ व्हेन वन पार्टी इज रेडी टू फुलफिल हिज ऑब्लिगेशंस, तब हम ये कंसिडर कर सकते हैं दैट येस द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रॉमिसर. यानी कि प्रॉमिसर की तरफ से ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म माना जा सकता है क्योंकि उसने अपनी तरफ से इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की कोशिश करी है. उसके पास उसे पूरा करने के रिसोर्सेज भी हैं बट फॉर सम रीज़न द प्रॉमिसी इज़ नॉट एक्सेप्टिंग इट. सो दैट इज़ नॉट द प्रॉमिसर्स प्रॉब्लम. वो तो अपनी तरफ से करना चाहता ही है कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट. अब प्रॉमिसी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो उसमें वो क्या करे? सो ओवर हियर दैट इज व्हाई द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैज गिवन सम फ्रीडम टू द प्रॉमिसर इन केस ऑफ अ टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस वेयर ही इज विलिंग टू परफॉर्म बट ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म ड्यू टू एन एक्ट बाय द प्रॉमिसी. तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज माना जाएगा प्रॉमिसर की तरफ से, प्रॉमिसी की तरफ से नहीं. ठीक. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड टेंडर. आई थिंक इसमें आपके 7 पॉइंट्स दिए हुए हैं. जस्ट गो थ्रू देम. दे आर वेरी theoretical and I don't think a lot of attention is required for them. Not a lot of explaining is required for that. I think if you just go through it once you will understand, and if not then you can message me and email me whatever queries you have. Now let's move on to discharge by agreement or consent. This is, I think, very self-explanatory. Discharge by agreement or consent, that is when both the parties to a contract mutually agree to terminate the contract. जब दोनों parties मिल के decide करते हैं कि हाँ अब इस contract को ख़त्म करते हैं, हमें इस contract को आगे नहीं बढ़ाना है, then it is said to be discharge by agreement or consent. Now discharge of contract by agreement or consent is again divided into 6 parts. Now these are very important and many times student gets confused with them, चाहे वो सेक्शन से रिलेटेड हो चाहे वो उनकी डेफिनेशन से रिलेटेड हो. सो पे वेरी क्लोज अटेंशन टू व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ. ठीक. टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज बाय अग्रीमेंट और कंसेंट. इसमें सबसे पहला है आपका नोवेशन. द सेकेंड इज रेसिशन. इट्स रेसिशन नॉट रिसेशन. प्लीज़ मेक श्योर, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. रेसिशन और रिसेशन में कंफ्यूज मत हो जाइएगा. द थर्ड वन इज ऑल्टरेशन. फोर्थ इज रेमिशन. Fifth, waiver, and the last one is merger. Now discharge by agreement or consent may be expressed or implied. Express and implied I think हम सबको पता है. Express means जब आप written form में या ओरल फॉर्म में सामने वाली पार्टी को बताते हैं अपने एक्ट्स और इंटेंशंस रिगार्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट. एंड इम्प्लाइड फॉर्म मीन्स जब आप अपने एक्शन से इम्प्लाई करते हैं या अपने एक्शन से जस्टिफाई करते हैं कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर. ना दिस इज व्हाट एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड मीन्स. अब नोवेशन का क्या मतलब होता है? नोवेशन टेक्स प्लेस व्हेन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर एन एग्जिस्टिंग वन बिटवीन द सेम पार्टीज or a contract between two parties is rescinded in consideration of a new contract being entered into on the same terms between one of the parties and the third party. अब इसे ब्रेक डाउन करते हैं कि ये बेसिकली क्या कह रहा है. नोवेशन विच इज़ मेंशन्ड इन सेक्शन 62 मीन्स दैट कभी भी अगर दो पार्टीज आपस में अपने ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करके एक नए कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करते हैं तब हम कहते हैं नोवेशन हैज़ टेकन प्लेस. दैट इज सपोज A and B agreed under terms of a contract that A will sell his horse to B for 10,000 rupees. Now B for some reason initially agreed to the contract but बाद में दोनों parties realize करते हैं that नहीं, let us create a new contract whereby A now tells B that I will sell you this horse for 20,000 rupees and B agrees to it. तो initial terms and conditions क्या थी? That the horse must be sold for 10,000 पर
फॉर सम रीज़न उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया गया और फिर दोनों सेम पार्टीज़ के बीच में एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना जहाँ पर ए ने बी से कहा कि आई विल सेल यू दिस हॉर्स बट नॉट फॉर 10,000 बट फॉर 20,000 रुपीज़। तो यहाँ हमारा नोवेशन का फर्स्ट पॉइंट कवर होता है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है हमारा, दैट जब दोनों पार्टीज हु हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट उसमें से एक पार्टी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ थर्ड पार्टी रिगार्डिंग द सिमिलर कंडीशंस। अब सपोज ए एंड बी ने ओरिजिनली कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया था रिगार्डिंग द सेल ऑफ अ हॉर्स फॉर 10,000 रुपीज़। नाउ B finds another seller called C जो उसे वही हॉर्स 7,000 रुपीज़ में सेल कर रहा है। So what he does now, he terminates his contract with A and enters into a contract with C. Now this is called a novation agreement। अब इसमें एक और कंडीशन बन सकती है that suppose A was selling his horse to B for 10,000 रुपीज़, बट जिस दिन उस अग्रीमेंट को साइन होना था, जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट को वाकई में एग्जीक्यूट होना था, A could not be present. So in place of him he sends C. ही सेज टू बी कि मैं अब नहीं प्रेजेंट हो सकता हूँ, तो मेरी जगह तुम हॉर्स इसे सेल कर दो, तो मेरी जगह ये हॉर्स सेल करेगा तुम्हें एंड यू पे द 10,000 रुपीज़ टू हिम। तो यहाँ पर फ्रॉम द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट वन पार्टी इज प्रेजेंट बट अ थर्ड पार्टी इज एडेड टू द सेम कॉन्ट्रैक्ट विद द सेम टर्म्स एंड कंडीशंस। दैट इज व्हेन नोवेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। नाउ इट सेज, अब कुछ कंडीशंस हैं हमारे पास नोवेशन को लेके। वो क्या कहते हैं, नोवेशन शुड टेक प्लेस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि ए एंड बी ने अगर प्रॉमिस किया था दैट दिस हॉर्स वुड बी सोल्ड टू बी विद इन 2 वीक्स, तो जो भी चेंजेस करने हैं, जो भी ऑल्टरेशंस करने हैं, वो सब 2 हफ्ते के अंदर ही हो जाने चाहिए। जैसे ही ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में जो टाइम पीरियड मेंशन था उससे हम एक्सीड करते हैं, देन नोवेशन कैन नॉट टेक प्लेस। Next says, if a new contract is subsequently substituted for the existing contract, it would be only to adjust the remedial rights arising out of breach of old contract. If for any reason the new contract cannot be enforced, the parties can fall upon the ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि जो नया कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो रहा होगा उसमें बहुत माइनर एंड सटल चेंजेस हो सकते हैं। ये नहीं कि आप पूरे कॉन्ट्रैक्ट का कंसिडरेशन, पूरे कॉन्ट्रैक्ट का जो गुड है, जो सामान है, आप उसे ही बदल दें और फिर आप उसे नोवेशन का नाम देते हैं। नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। द चेंजेस हैव टू बी वेरी माइन्यूट, दे हैव टू बी वेरी स्मॉल, ताकि प्राइस में डिफरेंस हो सकता है, आपके पार्टीज़ में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जो मेन क्रक्स है कॉन्ट्रैक्ट का, जो जिस बेसिस को, जिस गुड को, जिस प्रोडक्ट को, जिस सर्विस को आप सेल कर रहे हैं, उसमें चेंज नहीं आ सकता है। अदरवाइज इट विल बी कंसिडर्ड एज अ कम्प्लीटली सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन नॉट इंक्लूड इट इन नोवेशन। Next we come to alteration. Now alteration of a contract takes place when more of the terms of the contract are altered by the mutual consent of the parties. अब alteration, ऑल्टर से ही हम समझ सकते हैं। ऑल्टर यानी कि टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं कॉन्ट्रैक्ट की, अगर उनमें चेंज किया जाता है एंड द चेंज हैज़ बीन म्यूचुअली अग्रीड अपॉन बाय बोथ द पार्टीज, then it is said that this particular contract has enforced the process of alteration, and in such a case the old contract is again discharged। यानी कि जब एक ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस को हम बदल देते हैं then डेफिनेटली हम एक नया कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर रहे हैं और जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा वो टर्मिनेट या डिस्चार्ज हो जाता है। Now what are the differences between novation and alteration? 2 differences mentioned है यहाँ पे। The first one says, in novation the change in the existing contract is substantial and in alteration it is less than that। यानी कि novation में जो change आता है कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस में वो ज़्यादा होता है, जबकि आपका जो ऑल्टरेशन होता है उसमें कंपैरेटिवली नोवेशन से कम चेंजेस होते हैं। नोवेशन में ज़्यादा बदलाव किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट में और ऑल्टरेशन में नोवेशन के कंपैरिजन कम चेंजेस किए जाते हैं। इन नोवेशन पार्टीज़ में चेंज बट इन ऑल्टरेशन दे वुड रिमेन द सेम। अब नोवेशन में पार्टीज़ बदल सकती हैं बिकॉज वहाँ पर थर्ड पार्टी भी इंक्लूड की जाती है, पर ऑल्टरेशन में आप पार्टीज़ नहीं बदल सकते हैं। अगर ए एंड बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और ऑल्टरेशन हमें करना है तो ए एंड बी ही ऑल्टरेशन कर सकते हैं। कोई थर्ड पार्टी आकर फिर उसमें चेंजेस करेगी तो वो ऑल्टरेशन में नहीं आएगा, वो आपका किसी और फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू रेसिशन। Rescission says, rescission of a contract takes place when the parties to a contract may decide that they will forget the contract and will not bring a new contract into existence to replace it.
A promise not to demand performance from each other becomes the mutual consideration for discharge of contract, and it must be noted that if the parties do not take steps towards performance of a contract for a long time, this will amount to abandonment of the contract and will bring about its implied rescission. अब सिंपल तरीके से, सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझें, रेसिशन बेसिकली मीन्स जब दोनों पार्टीज आपस में डिसाइड करते हैं कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को अब आगे नहीं बढ़ाएंगे. ठीक, the basic change that takes place in the contract is we do not want to execute the contract anymore. A was going to sell his horse to B for 10,000 rupees, लेकिन कुछ टाइम बाद A एंड B दोनों ने डिसाइड किया कि नहीं, हमें ये कॉन्ट्रैक्ट अब आगे एग्जीक्यूट करना ही नहीं है. वी म्यूचुअली डिसाइड टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट बाय नॉट परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट. ना A B को हॉर्स सेल करेगा, ना B उसके बदले पैसे देगा. अब इसमें इन्होंने ये भी मेंशन किया है दैट अगर बहुत ज़्यादा टाइम बीत जाता है किसी एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए और हम उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं विद इन दैट टाइम फ्रेम, then automatically we will say that yes, this contract has achieved rescission. यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम तक अगर हम उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं या कंप्लीट नहीं करते हैं, देन इट ऑटोमेटिकली शिफ्ट्स इनटू द मोड ऑफ रेसिशन. वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाता है, ऑटोमेटिकली हमारा टर्मिनेट हो जाता है. आई थिंक दिस इज अ पॉइंट विच यू हैव कम अक्रॉस मेनी टाइम्स इन मेनी चैप्टर्स बिफोर, कि एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप बहुत टाइम तक एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, वो ऐसे ही साइन करके आपका पड़ा हुआ है, आप उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो कुछ टाइम बाद वो अपने आप ही आपका रिसीड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा. ठीक, नेक्स्ट, अब इसी में हम आगे देखते हैं क्या होता है. नाउ मोड ऑफ कम्युनिकेटिंग और रिवोकिंग रेसिशन. अब रेसिशन अगर हमें रिवोक करना है, अगर वापस लेना है, तो हम वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे. The rescission of a voidable contract may be communicated or revoked in the same manner and subject to the same rules as applied to the communication or revocation of a proposal. अब आप पहले चैप्टर पे, पहला नहीं, सेकेंड चैप्टर पे आप अपने जाइए. जब हमने ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पढ़ा था, हमने कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, देन कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पढ़ा था. वो सारे रूल्स आपके यहाँ पर अप्लाई किए जाएंगे. ठीक है, देयर इज़ नो डिफरेंस इन दैट, एंड वो नोट्स मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, मैं क्लास में समझा चुकी हूँ, सो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम एक्सप्लेनिंग इट ऑल ओवर अगेन. जस्ट रिमेंबर, रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से रिलेटेड आपके जो भी रूल्स थे, वो सारे आपके यहाँ भी अप्लाई होंगे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट rescission of a contract. All right. ठीक है. Now let's come to remission. Remission means acceptance of a lesser fulfillment of the promise made. For example, acceptance of a lesser sum than what was contracted for. Remission यानी कि it has been derived from the word remit. Remit means कम कर देना. Originally आप जिस प्राइस पर अग्री करे हैं या ओरिजिनली आपने जिस क्वांटिटी पे या जिस क्वालिटी पर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए अग्री किया है, आप आगे चल के उसमें कुछ कमी ले आते हैं. नाउ सपोज A was going to sell his horse to B for 10,000 rupees. आगे चल के 2-3 दिन में जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अब ये हॉर्स 10,000 में नहीं खरीदूंगा. B ने A से कहा दैट आई विल नॉट स्पेंड 10,000 रुपीज़ ऑन दिस हॉर्स बिकॉज आई फील योर हॉर्स इज़ वेरी वीक. नाउ A ऑफर्स हिम अ सम ऑफ 7,000 रुपीज़ कि ठीक है, आप 10,000 रुपीज़ मत पे करिए, बट डोंट एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट, जस्ट पे मी 7,000 रुपीज़. तो B मान गया. यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है, यहाँ पर आपने रेमिशन को यूज़ किया है, यानी कि जो ओरिजिनल अमाउंट पे B ने अग्री किया था टू बाय द हॉर्स फ्रॉम A, नाउ ही हैज़ रेमिटेड द अमाउंट फ्रॉम 10,000 टू 7,000. ये होता है आपका रेमिशन. अब ये बेसिकली कहते हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट देयर मस्ट बी सम कंसिडरेशन फॉर द रेमिशन ऑफ द पार्ट ऑफ डेब्ट. Section 63 allows the promisee to dispense with or remit the performance of the promise by the promisor or to extend the time for performance or to accept any other satisfaction instead of performance. यानी कि यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि जो प्रॉमिसी है आपका, दैट इज़ जिससे प्रॉमिस किया गया है, वो रेमिशन के बदले और भी बहुत सारी चीज़ें चाहे तो अपने प्रॉमिसर से ले सकता है. वो उससे कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज भी अवेल करवा सकता है. वो उससे चाहे तो परफॉर्मेंस का टाइम भी एक्सटेंड करा सकता है. नाउ सपोज जैसे A ने B ने ऐसे कहा दैट योर हॉर्स इज़ वेरी वीक, आई विल नॉट स्पेंड 10,000 रुपीज़ ऑन हिम. A ने कहा ठीक है, तुम 7,000 दे दो. B नहीं माना. B ने कहा नहीं, मैं तुम्हें 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ, जबकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था दैट आई विल बाय दिस हॉर्स फ्रॉम यू इन अ वीक.
बट नो, आई एम गिविंग यू 1 मंथ, अपने हॉर्स को तुम ट्रेन करो, उसके न्यूट्रिशन पे ध्यान दो, उसके डाइट पे ध्यान दो, उसे स्ट्रॉन्ग बनाओ, एंड आफ्टर 1 मंथ आई विल बाय दिस हॉर्स फ्रॉम यू एट द सेम प्राइस. सो व्हाट ही डिड, ही एक्सटेंडेड द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड. सो ये सारी चीज़ें भी आपकी इंक्लूड होती हैं रेमिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में. ये डेफिनेटली आपके रेमिशन के पार्ट में आएगा, प्लीज़ मेक श्योर ऑफ दैट. ठीक. वन साइडेड कंसेशन ऑफ रेमिशन इज गिवन अंडर अ म्यूचुअल अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज. कभी कभी वन साइडेड रेमिशन होता है. वन साइडेड जैसे कि इसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल में एक ही तरफ से रेमिशन था, यानी कि बी ने ही कहा था ए से दैट मैं 7,000 रुपीज़ में तुम्हारा हॉर्स लेने को तैयार हूँ. अब इसमें ए ने अपनी तरफ से भी कुछ रेमिट नहीं किया था, वो सेम हॉर्स उसे दे रहा है, पहले 10,000 में दे रहा था, अब 7,000 में दे रहा है. ठीक है. But it says, but if the same one-sided concession is given by a unilateral declaration, then it is called a waiver. Waiver is not a method of discharge by mutual agreement. यानी कि कभी जैसे कि हमने रेमिशन में पढ़ा कि जो आपका अमाउंट रेमिट किया जाता है उस पर दोनों पार्टीज म्यूचुअली अग्री करती हैं. दैट इज़ जब बी ने ऐसे कहा कि मैं 10,000 में नहीं, मैं 7,000 में ये हॉर्स लूँगा, तो ए मान गया. लेकिन कभी कभी अगर ये वन साइडेड डिक्लेरेशन होता, यानी कि बी ए से कम्युनिकेट नहीं करता कि मुझे ये हॉर्स 10 में नहीं 7 में चाहिए, और वो उसको ऑन द डे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट केवल 7,000 पे करता, दैट वुड हैव बिकम अ वेवर. Waiver basically means that when there is not a mutual agreement between the parties to remit either of the amount or the quality of the services or the products in the contract. यानी कि एक तरफ से B ने खुद ही डिसाइड कर लिया, A से बिना पूछे, A से बिना बातचीत किए, कि मैं अब 10,000 की जगह 7,000 पे करूँगा. He made a unilateral declaration. So over there it becomes a waiver. और अगर हम सीधी तरीके से देखें, waiver में म्यूचुअल कंसेंट नहीं होती है. यही सबसे बड़ा इसका फैक्टर है. दैट इज़ जनरली आपके जितने भी डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उन सब में म्यूचुअल कंसेंट होती है. दोनों पार्टीज मानते हैं कि हाँ, हम इस तरीके से इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करते हैं. बट इन वेवर only one party has unilaterally declared that I am not going to follow the original terms of the contract. अब नई terms and conditions ये हैं, and the other party has no idea about it. तो ये होता है आपका waiver. Next we are going to talk about merger. Merger takes place when an inferior right accruing to a party under contract merger into a superior right accruing to the same party under the same contract of merger. Merger I think आप लोगों ने अकाउंट्स में भी पढ़ा है, यानी कि जब आपकी दो अलग अलग पार्टीज, वन विच हैज़ अ सुपीरियर अथॉरिटी ओवर द अदर एंड द अदर विच हैज़ एन इन्फीरियर स्टेटस दैन द अदर पार्टी, जब इन दोनों के बीच में आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ नॉट, एंड बिकॉज ऑफ द सुपीरियर एंड द इन्फीरियर डिफरेंस बिटवीन द टू पार्टीज, इट इज़ नॉट able to reach its completion and is therefore discharged, then it is said that merger has taken place, that is the contract has been discharged due to merger. ठीक. Now let's talk about discharge by impossibility of performance. यानी कि जब उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाए. दिस हैज़ ऑल्सो कम मेनी टाइम्स इन द प्रीवियस चैप्टर्स. इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, थिंक अबाउट इट. इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं. क्या होता है इसमें? इफ एन अग्रीमेंट कंटेन्स एन अंडरटेकन टू परफॉर्म एन इम्पॉसिबिलिटी, इट इज़ void ab initio. void ab initio, void फ्रॉम एग्जिस्टेंस इटसेल्फ. यानी कि जैसे ही हम उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं, वो उसके साइन होने से, उसके अग्रीमेंट से ही void हो जाता है. द रूल इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग मैक्सिम्स. अब इन मैक्सिम्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा. दिस इज़ बेसिकली लैटिन टर्म्स. मैं समझा देती हूँ कि इनका मतलब क्या है. द फर्स्ट टर्म मीन्स द लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज व्हाट इज़ इम्पॉसिबल. यानी कि कोई चीज़ अगर इम्पॉसिबल है तो लॉ ऑब्वियसली उसे रिकॉग्नाइज नहीं करता है. लॉ डज नॉट गिव इट अ लीगल स्टेटस. ठीक. समथिंग विच इज़ इम्पॉसिबल. इफ समवन सेज टू यू that if you pay me 50,000 rupees, I will ensure that the sky tomorrow turns yellow. That is not possible. There is no way that you can do it, right? आप पूरे आसमान को एक दिन में ब्लू से येल्लो कैसे कन्वर्ट कर देंगे? Unless and until there is some kind of a natural calamity involved, even then there is a very high पॉसिबिलिटी कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. सो वेन एवर देर इज़ एन एक्शन और एन अंडरटेकिंग विच इज़ डीम्ड इम्पॉसिबल, तो इन द आइज ऑफ द लॉ इट इज़ ऑल्सो इम्पॉसिबल. नेक्स्ट वन सेज व्हाट इज़ इम्पॉसिबल डज नॉट क्रिएट एन ऑब्लिगेशन. बिल्कुल सही बात है. जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है वो किसी के ऊपर एक ऑब्लिगेशन भी नहीं बन सकता. जब आप ये काम कर ही नहीं सकते हैं तो आप इसको बेसिस बनाकर कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं कर सकते हैं. दिस इज़ व्हाट इट बेसिकली मीन्स. इनके आप
ये जो लैटिन टर्म्स आपके मेंशनड है इसमें से केवल आप मेन टर्म्स अगर देख लेंगे, जैसे दीज आर वेरी बिग फ्रेजेस, आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू रिमेंबर इट कम्प्लीटली, जस्ट मेक श्योर दैट यू नो कि आपका एक टर्म इसमें से आप याद रखिएगा ताकि आपको याद रहे अगर ऑप्शंस में आए तो हाँ कौन सा टर्म आपका कहाँ यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इम्पॉसिबिलिटी एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ अग्रीमेंट। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ सेक्शन 56 lays down that an agreement to do an act impossible in itself is void. This is known as pre-contractual और initial impossibility, यानी कि कोई एक ऐसा एक्ट जो कि करना इम्पॉसिबल है वो उसके कंसेप्शन से ही, दैट इज उस अग्रीमेंट के कंसेप्शन से ही इम्पॉसिबल होता है, तो दैट कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज्ड फ्रॉम द प्री कॉन्ट्रैक्चुअल डेज इटसेल्फ। एक अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए दोनों पार्टीज को लॉ को इन्वॉल्व करना पड़ता है। एन अग्रीमेंट इज जस्ट टू पीपल अग्रीइंग ऑन समथिंग, व्हेन दे इन्वॉल्व लॉ इन दैट इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। तो प्री कॉन्ट्रैक्चुअली ही ये डिस्चार्ज हो सकता है, यानी कि बिना लॉ को इन्वॉल्व किए ही आप एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हैं जिसका होना या जिसके कंसिडरेशन में या जिसकी एक्टिविटीज़ में जो उसके मेन कोर कंटेंट है उन्हें करना ही इम्पॉसिबल है। इट इज़ एब्सोल्युटली impossible. Now impossibility arising subsequent to the formation of the contract. Now impossibility which arises subsequent to the formation of a contract which could be performed at the time when the contract was created is called post contractual or supervening impossibility. यानी कि कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते वक्त ये काम करना पॉसिबल था, बट आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट वॉज क्रिएटेड सडनली ड्यू टू सम एक्सटर्नल रीजन्स द कॉन्ट्रैक्ट बिकेम इम्पॉसिबल टू डू। जैसे कि आई थिंक आई गिवन दिस एग्जाम्पल बिफोर एज वेल, बैम्बूज का बिजनेस था। बैम्बूज का बिजनेस इनिशियली मान लीजिए प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग उसकी अलाउड थी, तो ए ने किसी प्राइवेट कंपनी जो कि बैम्बूज को मैन्युफैक्चर करती थी उनसे कॉन्ट्रैक्ट लिया दैट दे विल सप्लाई हिम 100 क्विंटल्स ऑफ बैम्बू फॉर अ प्राइस ऑफ 1 लाख रुपीज़। अब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, सब कुछ रेडी हो गया, इट वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय लॉ एज वेल, लेकिन जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट आपका एग्जीक्यूशन पे पहुंचता है उसके अगले ही दिन नोटिस आ जाता है गवर्नमेंट की तरफ से दैट बैम्बू सेलिंग प्राइवेटली इज़ बैंड इन इंडिया। तो जब कॉन्ट्रैक्ट बना था तब तो वो आपका पॉसिबल था उसे परफॉर्म करना, लेकिन जब वो साइन हो गया और उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम आया देन सडनली इट बिकम्स इम्पॉसिबल बिकॉज नाउ द गवर्नमेंट हैज़ बैंड द यूज़ ऑफ बैंड द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ बैम्बूज बाय प्राइवेट ट्रेडर्स। सो ये हो जाती है आपकी सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी या पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के बाद ये दिक्कतें जो बड़ी हैं। नेक्स्ट यू हैव कुछ आपके यहाँ पर पॉइंट्स मेंशन्ड हैं जिसमें कि सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी से कैसे डिस्चार्ज हो सकता है। सबसे पहला डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली आपके पास था whatever content you had in the contract, suppose it gets destroyed. एक one particular truck was supposed to deliver 100 quintals of iron to a factory, but रास्ते में ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है and the iron gets melted or destroyed or it doesn't exist anymore. तो ऑटोमेटिकली आपका वो कॉन्ट्रैक्ट भी टर्मिनेट हो जाएगा बिकॉज वो सब्जेक्ट मैटर ही अब एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट इट सेज नॉन एग्जिस्टेंस और नॉन अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग्स। थर्ड सेज डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ अ पर्सनल सर्विस। अगर कोई पर्सनल सर्विस देने आ रहा था आपको एंड दैट पर्सन अनफॉर्चुनेटली इज इनकैपेसिटेटेड, दैट इज उनके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है या उनकी डेथ हो जाती है, तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट आपका पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी में आएगा। नेक्स्ट वन सेज चेंज ऑफ लॉ और स्टेपिंग इन ऑफ अ पर्सन विद स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, यानी कि अगर कानून बदल जाता है, जैसे कि मैंने आपको बैम्बूज का एग्जांपल दिया था, या फिर एक ऐसा इंसान इंटरवीन करता है उस कॉन्ट्रैक्ट में जिसके पास ऑफिशियल अथॉरिटी है गवर्नमेंट की तरफ से उस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने की। एंड द लास्ट वन इज आउटब्रेक ऑफ वॉर बिकॉज दैट विल बी अ केस ऑफ इमरजेंसी एंड इमरजेंसी में नॉर्मल रूल्स एज इट इज डू नॉट अप्लाई। Okay, now they have given you a statement that impossibility of performance is not an excuse. यानी कि in the following cases a contract is not discharged on the ground of supervening impossibility. किन केसेस में हम एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। सबसे पहला डिफ़िकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस। अगर हम आपसे ये कहें सपोज मैं अगर तुमसे कहूँ दैट दिस इज़ द पर्टिकुलर असाइनमेंट, आई वॉन्ट यू टू सबमिट दिस असाइनमेंट टू मी विद इन 3 days. Now it is difficult for you to complete an assignment, a 10-page assignment in 3 days. But is it impossible?
नो, अगर आप अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज करेंगे तो आप डेफिनेटली 3 दिन में 10 पेज लिख के मुझे सबमिट कर सकते हैं। सो ओवर देयर सिमिलरली अगर हम कॉन्ट्रैक्ट को कंसिडर करें, अगर उसकी डिफ़िकल्टी लेवल्स हाई है तो इसका ये मतलब नहीं कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। आप वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के बेसिस पर नहीं कर सकते। आप अग्रीमेंट्स में चेंजेस ले आइए, आप ऑल्टरेशंस करिए, आप रेमिशंस करिए, पर आप सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हैं। सेकेंड वन इज़ कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी, यानी कि कमर्शियली अगर आपके पास उतना पे करने की क्षमता नहीं है। नाउ सपोज 10 क्विंटल्स ऑफ राइस was supposed to be given by A to B। अब बी ने उस 10 क्विंटल्स ऑफ राइस के लिए कहा कि मैं तुम्हें अभी 10,000 रुपये दे सकता हूँ। ए ने कहा कि नहीं, मुझे 20,000 चाहिए। बी सेड दैट आई डोंट हैव 20,000, आई ओनली हैव 10,000, तो मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है तुम्हें पे करना। It's not like it is impossible for B. If he saves more money in the future days और वो कहीं और से अपने फंड्स को सोर्स करता है, डेफिनेटली ही कैन अरेंज फॉर 10,000 रुपीज़ मोर एंड पे ए। सो ओवर हियर कमर्शियली इम्पॉसिबल नहीं है बी के लिए ए को उतना अमाउंट पे करना। सो दैट विल ऑल्सो नॉट बी कंसिडर्ड अंडर सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट यू हैव इम्पॉसिबिलिटी ड्यू टू फेलियर ऑफ अ थर्ड पर्सन। अगर किसी तीसरे की गलती की वजह से आप उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का टैग आप नहीं यूज़ कर सकते हैं। अब सपोज करिए A and B signed a contract regarding transfer of rice again from A to B, और C मीडिएटर बना कि मैं इस ट्रक में राइस लेकर जाऊंगा और वहाँ उसे पहुँचा दूंगा। अब C को जिस दिन सुबह राइस पहुँचाने जाना था वो उठा ही नहीं टाइम पे, तो जिस दिन उसे पहुँचना था वो उस टाइम पे पहुँच नहीं पाया। तो यहाँ पर द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट बिकम इम्पॉसिबल बिकॉज अ थर्ड पार्टी कुड नॉट परफॉर्म हिज एंड ऑफ द ऑब्लिगेशंस। वो डेफिनेटली उसका फेलियर है, दैट इज इट इज़ द फेलियर ऑफ सी हु इज़ अ थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, बट इट डज नॉट एड अप टू द सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबल नहीं है अब उस राइस को वहाँ पहुँचाना, सी पहुँचाएगा डेफिनेटली, जिस दिन पे बोला था उस दिन नहीं, हो सकता है थोड़ा बाद में पहुँचाए। नेक्स्ट यू हैव स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स एंड सिविल डिस्टर्बेंस। देखिए स्ट्राइक्स, लॉकआउट, सिविल डिस्टर्बेंस ये किसी भी ट्रेड यूनियन का, किसी भी फैक्ट्री वर्कर का राइट होता है कि अगर उनकी मांगों को उनके ओनर्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं देन दे कैन सिट फॉर अ डेमोन्स्ट्रेशन। वहाँ पर आप सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का चार्ज नहीं लगा सकते हैं उन पर कि इन्होंने काम करने से ही मना कर दिया, काम करना ही इम्पॉसिबल हो गया है। ऐसा नहीं है। अगर आप बैठ कर एज ओनर्स उनके साथ नेगोशिएट करेंगे, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को मानेंगे, डेफिनेटली दे विल कम बैक टू वर्क अगेन। इट इज़ नॉट लाइक इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर द वर्कर्स टू गेट वर्क फ्रॉम देम, सो दैट विल नॉट अगेन बी कंसिडर्ड इन सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट इज फेलियर ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। दिस इज सिमिलर टू द डिफिकल्टी एंड कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी, यानी कि एक या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स अगर आपके फेल हो जाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। एक टाइम पे कोई चीज़ नहीं कंप्लीट हुई, आप दोबारा कोशिश करिए, डेफिनेटली हो जाएगी। सो जस्ट बिकॉज यू हैव फेल्ड टू डू अ टास्क वंस दैट डजंट मीन यू कैन नॉट डू इट एवर अगेन। ट्राई अगेन, सीधे यही बात आती है। इट डज नॉट मेक इट सुपरवीनिंगली इम्पॉसिबल। ऑलराइट, now let's come to the effects of supervening impossibility. The first point says when the performance of a contract becomes impossible or unlawful subsequent to its formation, the contract becomes void। यानी कि हमने पहले भी पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट के क्रिएट होने के बाद अगर उसके एक्शंस या उसका जो भी कंटेंट है, जो भी सब्जेक्ट मैटर है, अगर वो इम्पॉसिबल हो जाता है then it becomes void। Second point says where one person has promised to do something which he knew or with reasonable diligence might have known and which the promisee did not know to be impossible or unlawful, the promisor must make compensation to the promisee for any loss which the promisee sustains through the non-performance of the promise। यानी कि अगर एक इंसान जिसने प्रॉमिस किया था जानकर, यानी कि कोई भी सेंसिबल इंसान अगर कोई ऐसी चीज़ प्रॉमिस करता है जो कि उसे पता है उसके प्रॉमिस करने की या एग्जीक्यूट करने की वजह से ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तब भी वो काम करता है, देन ओवर हियर ही हैज़ टू कॉम्पनसेट द प्रॉमिसी फॉर एनी फर्दर लॉस। अब मान लीजिए ए एंड बी, अगेन देवर टू पार्टीज। बी वॉज अ कॉन्ट्रैक्टर जिसे घर बनाना था, घर में एक कमरा बनाना था जिसके लिए उसे 1 महीने का टाइम दिया गया था। नाउ बी ट्राइज टू सोर्स सीमेंट फ्रॉम ए, और वो ए से कहता है कि अगर तुम मुझे 4 दिन के अंदर ये सीमेंट ला के नहीं दोगे तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा क्योंकि मैं ये कमरा नहीं बना पाऊँगा। नाउ ए ओन्स अ फैक्ट्री जहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं।
अब ए जानता है कि अगर उसे A knows that if he does not deliver that particular quantity of cement to B within 3 days, then B will enter into a lot of trouble. ये जानने के बावजूद वो अपने फैक्ट्री में 2 दिन की छुट्टी कर देता है। तो अब 3 दिन में से 2 दिन वर्कर्स ही नहीं आए फैक्ट्री में, तो एक दिन वो आए और एक दिन में उतना प्रोडक्शन होना पॉसिबल ही नहीं था। तो ए फेल्ड टू डिलीवर द सीमेंट टू बी, जिसकी वजह से बी का काम बैकलॉग में चला गया और उसको नुकसान हो गया। नाउ देन बी कैन डेफिनेटली क्लेम ए फॉर कॉम्पनसेशन ओवर ईयर, बिकॉज वहाँ ए ने जानते हुए भी एक ऐसा काम किया जिसकी वजह से बी को कुछ ना कुछ नुकसान झेलना पड़ा। तो अगर बी चाहे तो अपनी तरफ से ए से कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है इफ़ देयर इज़ अ प्रॉपर लीगल कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व इन दिस एंटायर ट्रांजैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, when an agreement is discovered to be void or when a contract becomes void, any person who has received any advantage under such agreement or contract is bound to restore it or to make compensation for it to the person from whom he received it. अब मान लीजिए जैसे मैंने बैम्बू ट्रेडिंग का आपको एग्जांपल दिया था, बैम्बू की प्राइवेट ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग बैन हो गई, उसके बावजूद कोई कंपनी है वो बैम्बू को मैन्युफैक्चर कर रही थी, उसे सेल कर रही थी, एंड इवन आफ्टर द गवर्नमेंट इम्पोज बैन ऑन इट दे कंटिन्यू टू डू इट एंड केप्ट ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। तो जब इसके बारे में गवर्नमेंट को पता चलता है, सो फ्रॉम द डेट फ्रॉम विच द बैन वॉज इम्पोज, तब से लेकर टिल द प्रेजेंट डेट जितने भी प्रॉफिट्स कंपनी ने कमाए हैं वो सारे प्रॉफिट्स कंपनी को वापस देने पड़ेंगे उसके जो भी बायर्स रहे होंगे। सपोज ए बी एंड सी वर द बायर्स फ्रॉम दैट कंपनी और उन लोगों ने रिस्पेक्टिवली 20,000, 30,000, 40,000 का अमाउंट पे किया था, तो द कंपनी हैज़ टू रिटर्न ऑल द अमाउंट बैक टू देम एंड हैज़ टू कॉम्पनसेट फॉर ऑल द बेनिफिट्स रिगार्डिंग इट। एंड सिमिलरली ए बी एंड सी को भी वो जो भी बैम्बू लेकर गए थे वो सारा बैम्बू वापस करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। सो ओवर हियर इट सिंपली मीन्स दैट अगर कोई पर्टिकुलर काम, अगर कोई पर्टिकुलर एक्शन या कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपका इम्पॉसिबल हो जाता है एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद टू बी एग्जीक्यूटेड थ्रू अ कॉन्ट्रैक्ट, देन यू हैव टू रिटर्न ऑल द बेनिफिट्स दैट यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट यू हैव द डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन. Let's see, this sounds interesting. In England, the doctrine of frustration is the concept that is analogous to supervening impossibility. It comes into play when the common object of a contract can no longer be achieved, or when the contract after it is made becomes impossible of performance due to circumstances beyond the control or contemplation of the parties. I think the doctrine of frustration is something which you can use as a synonym to supervening impossibility. कि अगर कोई एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट था जो कि पहले एग्जीक्यूट हो सकता था पर बाद में ड्यू टू सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टीज वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है, तो हम ये कहते हैं कि आपका ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट कम्स अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, यानी कि दोनों पार्टीज़ के बस में ही नहीं है, वो चाह के भी इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, सो दे आर फ्रस्ट्रेटेड। सो उस फ्रस्ट्रेशन से आप कह सकते हैं कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का नाम आया है। नेक्स्ट यू हैव डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम. Now it says the Limitation Act of 1963 lays down that a contract should be performed within a specified period called the period of limitation. यानी एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की एक टाइम लिमिट होना चाहिए, हर कॉन्ट्रैक्ट का एक टाइम लिमिट होता है। अगर उस टाइम लिमिट के अंदर वो परफॉर्म हो गया, वेल एंड गुड, एग्जीक्यूट हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हो पाता है देन इट इज़ ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड है कि हमें इस पर्टिकुलर काम को कंप्लीट करना है विद इन अ मंथ और हम नहीं कर पाते हैं, then it becomes the legal obligation of either of the parties to discharge the contract if they want to do so. अगर ए ने बी से प्रॉमिस किया था कि वो उसका घर उसे 6 महीने में बना के दे देगा एज अ कॉन्ट्रैक्टर और वो नहीं कर पाता है, तो बी इमिजिएटली चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करके किसी दूसरे इंसान को उस घर का कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है। Now this is what basically mean by lapse of time. Next you have the Limitation Act lays down a period of 3 years for the enforcement of most types of rights. यानी कि 3 साल का मैक्सिमम टाइम दे रखा है उन्होंने जनरल केसेस के लिए, यानी 3 साल से ज़्यादा आपको नहीं लगना चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए। एंड बाय किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को आई मीन मैक्सिमम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स should not take more than 3 years to be executed or to be completed. Next you have discharge by operation of law.
यानी अ कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज इंडिपेंडेंटली ऑफ द विशेज ऑफ द पार्टीज दैट इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, यानी कि कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज के विश पे नहीं चलता है। समटाइम्स ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो ऑटोमेटिकली आपका डिस्चार्ज हो जाता है, एंड दैट डिस्चार्ज कम्स अंडर द लॉ, यानी कि जब कानून अपनी तरफ से डिक्लेयर कर देता है दैट नाउ दिस कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, नाउ दिस कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज, एंड ओवर देयर द कंसेंट और द विल ऑफ द पार्टीज इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। ये जनरली कब होता है आपका? सबसे पहले बाय डेथ, यानी कि दोनों कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टीज में से अगर किसी की डेथ हो जाती है एंड द कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टीज वर प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ अ पर्सनल सर्विस इन देयर कॉन्ट्रैक्ट्स, तो वहाँ पर भी आपके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने साइन किए थे वो ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट बाय इंसॉल्वेंसी, डेफिनेटली अगर कोई बैंकरप्ट हो जाता है, उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास एसेट्स नहीं है, तो डेफिनेटली वो आगे कॉन्ट्रैक्ट को प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। देन यू हैव बाय अनऑथराइज ऑल्टरेशन ऑफ द टर्म्स ऑफ अ रिटन अग्रीमेंट, यानी कि अगर आपने एक पर्टिकुलर रिटन अग्रीमेंट के टर्म्स को ऑल्टर किया है और उस ऑल्टरेशन के लिए आपने प्रॉपर लीगल रास्ता नहीं चुना या सामने वाली पार्टी को नहीं इन्फॉर्म किया, अपने हिसाब से अपने कन्वीनियंस पे उसे किया है, देन ओवर देयर दैट ऑल्सो कैन बी डिस्चार्ज अंडर ऑपरेशन बाय लॉ, यानी कि आप अपनी मन मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते हैं अनलेस एंड अनटिल यू सीक परमिशन ऑफ लॉ और एटलीस्ट यू सीक परमिशन ऑफ द पर्सन यू हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद। नेक्स्ट यू हैव बाय राइट्स एंड लायबिलिटीज बिकमिंग वेस्टेड इन द सेम पर्सन, यानी कि अगर राइट्स भी लायबिलिटीज़ भी सब एक ही इंसान में हैं और वो इंसान ही आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, देन डेफिनेटली वो कॉन्ट्रैक्ट भी आपका डिस्चार्ज हो जाएगा। Last, you have discharge by breach of contract. Breach of contract means breaking of the obligation which a contract imposes. It occurs when a party to the contract without lawful excuse does not fulfill his contractual obligation or by his own act makes it impossible that he should perform his obligation under it. यानी कि अगर कभी भी कोई contract either of the parties when either of the parties do not fulfill their obligations under the contract and that obligations which they were not fulfilling वो lawful नहीं है, उन्होंने अपनी मर्जी से उस particular contract के obligations को follow नहीं किया या अपनी liabilities को पूरा नहीं किया, then over there they have committed a breach of contract। अब A ने B से promise किया था कि वो एक हफ्ते में उसे सीमेंट डिलीवर करेगा, B ने उसके promise के चलते उसे पूरा पेमेंट कर दिया, but after 1 week A has still not delivered it, and when B contacts him, A refuses to deliver him citing certain excuses, तो वहाँ पर ही हैज़ कमिटेड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि उसने अपनी मर्जी से बिना इन्फॉर्म किए बिना इन्फॉर्मेशन के गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया है। अगर वो पहले बताता कि वो नहीं कर पाएगा देन दे वुड हैव रीच्ड अनदर अग्रीमेंट, बट ओवर हियर ही चोज नॉट टू इन्फॉर्म एंड ही कमिटेड अ ब्रीच, दैट इज ही डिड नॉट फॉलो द टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। Now breach of contract again it can be of two types, actual breach or anticipatory or constructive breach. Now actual breach of contract आपका कब होता है? सबसे पहले when the performance of the contract is due. Actual breach of the contract occurs when at the time when the performance is due one party fails to perform his obligation under the contract। जैसे कि मैंने अभी बताया एक हफ्ते का टाइम था A के पास B को सीमेंट डिलीवर करने के लिए, बट उसने एक हफ्ते बाद नहीं डिलीवर किया, दैट इज द टाइम लैप्स्ड, सो दैट बिकम्स एन एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Second is during the performance of the contract. Actual breach of contract also occurs when during the performance of the contract one party fails or refuses to perform his obligation under the contract। यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट आपका एग्जीक्यूट हो रहा है वो इन प्रोग्रेस है, उस बीच में वन ऑफ द पार्टीज रिफ्यूजेस कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करूँगा, ठीक, उसमें भी आपकी दो चीज़ें होती है। द रिफ्यूजल टू परफॉर्म कैन बी डन अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। सबसे पहला एक्सप्रेस रेप्यूडिएशन, यानी कि आप बोल के या लिख के एक्सप्लेन करें, एक्सप्रेस एज इट मीन्स। सेकेंड इज बाय इम्प्लाइड रेप्यूडिएशन, इम्पॉसिबिलिटी क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। नाउ सपोज ए एंड बी, सीमेंट का एग्जाम्पल हम लेते हैं, ए वो सपोज टू डिलीवर 5 क्विंटल्स ऑफ सीमेंट टू बी इन अ वीक फॉर विच बी वो सपोज टू पे हिम 50,000 रुपीज़, ठीक है। एक हफ्ते बाद ए सीमेंट लेके पहुंचता है और बी जब वहाँ पहुँचता है तो ए को पता चलता है दैट बी ने अपनी तरफ से एक रिटन फॉर्म में ए से कहा है दैट मैं 50,000 रुपीज़ नहीं दूंगा, मैं तुम्हें केवल 40,000 रुपीज़ दूंगा, ठीक। ओवर हियर बाय राइटिंग दैट पर्टिकुलर थिंग ऑन अ पीस ऑफ पेपर B has committed
एक्सप्रेस रेप्यूडिएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड रेप्यूडिएशन क्या होता, जब वो 50,000 की जगह 40,000 लेकर आता और वो 40,000 ही ए को देता, उससे ज़्यादा देता नहीं, तो उसने अपने एक्शन से शो कर दिया दैट ही हैज़ कमिटेड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो टर्म्स एंड कंडीशंस पे उसने अग्री किया था वो उसने फुलफिल नहीं करी है। Next you have anticipatory breach of contract. It occurs when a party to an executory contract declares his intention of not performing the contract before the performance is due. यानी कि जिस पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना था उसने कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने से पहले यानी कि उसका टाइम आने से पहले ही अनाउंस कर दिया अपनी तरफ से कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर रहा हूँ। When then this happened by expressly renouncing this obligation by doing some act so that the performance of his promise becomes impossible. अब मान लीजिए ए को वो सीमेंट डिलीवर करना था बी को 1 हफ्ते में, जिसके बदले उसे 50,000 रुपये मिलते, लेकिन 1 हफ्ता पूरा होने से पहले ए फ़ोन करके बी से कह देता है कि सुनो मैं तुम्हारे इतने क्विंटल सीमेंट डिलीवर नहीं कर पाऊँगा, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अब बी ने मान लीजिए ए को कुछ एडवांस दे रखा था उसके लिए, नाउ बी बिकम्स लायबल टू टेक दैट एडवांस बैक फ्रॉम ए। अब definitely when he is not fulfilling his end of the promise, why should he keep the advance as well? So over here he has committed, that is A has committed a breach of contract. Second is imply करता, यानी कि अपने action से imply करता that he does not want to perform the contract. A suppose a few days before he was supposed to deliver the cement to B leaves the town and goes into hiding, यानी कि किसी को पता ही नहीं है कि वो कहाँ चला गया है। तो यहाँ उसने अपने एक्शन से एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि इट इज़ बिकम इम्पॉसिबल फॉर ए टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट एंड इम्पॉसिबल फॉर बी टू रिट्रैक्ट एनी काइंड ऑफ परफॉर्मेंस फ्रॉम ए। तो जब ये दोनों सिचुएशंस आपकी होती हैं देन इट कम्स अंडर एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Now anticipatory breach of contract, the rights of the promisee, that is the party not in breach or the aggrieved party, in case of doctrine of anticipatory breach, can do the following things. The first one, he can treat the contract as discharged so that he is absolved of the performance of his part, यानी कि इन केस ऑफ एन एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो विक्टिमाइज पार्टी होती है, जो अग्रीव्ड पार्टी होती है, वो चाहे तो अपनी तरफ से उस कॉन्ट्रैक्ट को डिक्लेयर कर सकती है एज नल एंड वॉइड। उसने कह दिया कि मेरी तरफ से अब ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया है, इट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज द अदर पर्सन हैज़ कमिटेड ब्रीच। द सेकेंड वन, ही कैन इमीजिएटली टेक अ लीगल एक्शन फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। या तो फिर उसके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, पहला या तो अपनी तरफ से वो उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दे, सेकंड वो लीगल ऑप्शन ले ले, दैट इज़ जो आपका प्रोमिसर था उसके खिलाफ वो कोर्ट में जाके लीगल एक्शन ले सकता है। नाउ ऑल ऑफ दिस इज़ अंडर डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपकी यही सारी चीज़ें इसमें आती हैं, आपके बुक्स में उसके सेक्शंस वगैरह भी बहुत अच्छे से मेंशन होंगे, प्लीज़ गो थ्रू देम। जो PDF है आपका उसे पढ़िएगा, वट एवर कंटेंट इज़ गिवन इन योर बुक्स गो थ्रू दैट एज वेल। इन केस समथिंग इज़ नॉट क्लियर, again contact me, message me, and girls please make sure that you are studying little and little every day. Don't keep on piling it up everything for the 11th hour because last minute में इतना सब पढ़ना आपके लिए ना केवल ML के लिए बल्कि बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। Okay, till then take care and thank you.